2006 November also came when I was supposed to retire, and we came from Bhopal to Delhi and गुरुजी के दरबार में गए। और मुझे याद है बड़ा क्लियरली, उस दिन गुरुजी जो है, कई बार गुरुजी सत्संग के बाद में नीचे बैठ जाया करते थे कारपेट के ऊपर, और वो बैठ के वो दीवार से अपना टेका लेके, एंड ही वुड हैव लाइटर कन्वर्सेशन विद दिस संगत। That day he was sitting on the carpet. Next to him was Maneka Gandhi ji. And suddenly he looked up to me and said, "तू नौकरी छड़ती है?" मैं कहनी, बस गुरुजी मैं कल सवेरे जा रहा है ना कलकत्ता, जो अपना हिसाब कर लूं, आप आज्ञा दो तो मैं एक्सटेंशन कर ले लूं। He said, नहीं, तू दिल्ली आना है। And like a fool, I kind of argued, गुरुजी अगर दिल्ली में दे दें, एक्सटेंशन दे देते, मैं एक साल ले लेला। So virtually, with a dismissal of hand, he told me, ठीक है, मतलब he wasn't very pleased with my answer. हम लोग कलकत्ता गए, वहां मेरा एक साल का एक्सटेंशन लिया, हम लोग दिल्ली आ गए, जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी। दिल्ली आके हमने अपना पूरा जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। And to our utter shock and surprise, in 2007 May, last day of May, Guruji left his chola, and we never ever imagined that Guruji का साया हमारे ऊपर से चला जाएगा। We were in a state of shock and stupor, ये क्या हो गया, not knowing that Guruji was in fact preparing us for a much bigger inning. And 2007, that extension of mine, my job also expired, and that is how me and my friend had started thinking about our partnership. देखिए, I just want to go back and forward into the time frame just to emphasize how Guruji had blessed my life. In 2007, and after that extension was finished, one fine day, Guruji gave darshan to Poonam Aunty, that he is sitting on a hill and something like that in a Jain dress. देखिए, this is actually a fact, how Guruji manifests his presence and how he tells us that what he has in mind for us. He had kept on telling me that you तो नौकरी छोड़ दे। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। He told me to make a CV. I made the CV and I made the CD. And after he left his chola, he gave darshan to my wife in dream that he was sitting in a Jain dress on a hillock. इसके कुछ दिन बाद ही जो है 2008 लोहड़ी के दिन मेरे पास में एक कॉल आता है एक जेंटलमैन का कि क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा कुछ नहीं, अपना एक कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स कर रहा हूँ। He said, come and meet me. He happened to be the managing director of a very large company. So I went from Delhi to Bombay and from Bombay to a place called Jalgaon. And I met the gentleman. And believe you me, in a matter of just about half an hour, he made me an offer which I could never imagine. So I got that job. And then he instructed his somebody, I don't recall exactly कौन था मेरे साथ में जो है, कि उनका जो एक एस्टेब्लिशमेंट है वो मेरे को दिखा के लाए। जब वो मेरे को दिखाने के लिए गए, then it occurred to me as to what Guruji was planning for me. That company's name is Jain Irrigation. It's a very large Indian multinational company present all over the world. And that establishment where I was taken happens to be on a hill. I recall, I think I called back my wife, Poonam Aunty. I said, look, this is what Guruji had planned for us. We can go back and, see how actually I just went to Guruji and I was taken to him. I never went to him. I was taken by my brother-in-law in connection with my disease, which was cancer of prostate in a very advanced stage. He blessed me, he blessed my wife, Poonam Aunty, and he kept on telling me to a nokri chhad de.
And I would never have left the comfort of that job because in private companies you never retire. And then he told me कि अपना तो CV लेके आओ. मैंने CV बनाया. And in a matter of 2 minutes, 2 months only, 2006, 7 November end, and 2008, 1st February, I got my new job as a senior vice president in that large company. Sanjay, it's not about the job, it's about being rehabilitated. Because at that time I was always consumed with the fear of suffering from cancer. And I was not really enjoying a very good physical and mental health. But once I got into that particular mold, joined that company, I forgot absolutely, that I was suffering from any disease whatsoever. And this job has been so enriching, so engrossing that I traveled many parts of the world. It brought me a certain amount of laurels. And you'll be surprised to know that even at the age of 75, I celebrated with Guruji's blessings just a few days back. I am still working in that company. I'm still, trying to keep myself busy, and I feel very, very blessed that Guruji has really taken care of my life from A to Z. And this is in fact my second inning. I say second inning because in this job, as I mentioned, I win a lot of laurels at anything to do with Africa. I travel to Africa. I travel to many parts of the world. Today, if there is anything to do with Africa, I'm invited by the government, invited by the chambers of commerce. I'm consulted. I'm asked to give my opinion and things like that. That is how actually Guruji has shaped me. I could never have imagined that my second job, my second inning would have been so enriching and so satisfying. So शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. आपने मेरी हेल्थ का, मेरे परिवार का, मेरे कैरियर का, हर चीज का जो है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको आपने शुक्राना करना सिखाया. आपने हमको जो है हमारी पूरा एक थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया. आज घर में अगर रुमाल भी आता है, नई गाड़ी भी आती है, पहले हम गुरुजी के पास में जाके उनको पेश करते हैं. घर में अगर सुबह पहला प्रसाद बनता है, कोई भी हम लोग लंगर बनाते हैं, तो वी टेक इट एज ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी. And that is how the entire life has come into a paradigm shift. Sangaji, we cannot just thank enough Guruji that he has blessed us. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना. जय गुरुजी. थैंक यू गुरुजी. जी अंकल, पूनम आंटी ने सत्संग शेयर करना है. हाँ जी. जय गुरु जी. संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना. इतना इतना हमारा संपूर्ण कल्याण करने का बहुत बहुत शुक्राना. ये सब जितना भी सत्संग है उनकी ब्लेसिंग्स का, ये शायद खाली वो ही पार्ट है जो गुरुजी ने हमें दिखाया या बताया. इसके अलावा हमारी जिंदगी को कितना उन्होंने मोल्ड किया है, इतना दूर तक उन्होंने ब्लेस किया है, उसका बखान या उसका इशारा भी गुरुजी नहीं करते. कभी कभी ऐसा लगता है कि बैठे बैठे गुरुजी की ऐसे फ्रेग्रेंस आ जाती है और वो पल में पूरे शरीर में ऐसी फ्रेग्रेंस से भर देते हैं हमें कि ऐसे लगता है कि यहीं बैठे हैं, कहीं अंदर बैठे हैं या कहीं सामने बैठे हैं. सो इतनी बड़ी दात देने का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी. अभी अंकल की ब्लेसिंग्स आप लोगों ने सुनी है. इतनी कृपा गुरुजी ने अंकल पे की है. और कहते हैं ना कि गुरुजी कहते सी कि एक भी परिवार दा बंदा हो आ जाए मेरे को तो पूरा परिवार ब्लेस्ड है, और अगर कपल आ जाए तो पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, और पूरी फैमिली आ जाए तो पुश्ता भी ब्लेस्ड है.
सो ये उन्हीं कृपा, उन्हीं की कृपा से पता नहीं कहाँ कहाँ हमें, हमारे आसपास हमारा पूरा परिवार कैसे कैसे ब्लेस करा गुरुजी ने, एक एक करके सबको सबको ब्लेसिंग्स मिली। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। एक दिन जैसे अंकल ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि मेरे को भी कल्याण की जरूरत है, तो ये सारे टेस्ट करने के बाद, करवाने के बाद, जिस दिन मैं गुरुजी से आज्ञा लेने आई तो माथा टेका, क्योंकि गुरुजी के दर्शन शुरू से ही शुरू से ही ड्रीम में दर्शन होते हैं। बॉम्बे में भी जब गुरुजी ने बॉम्बे भेजा, हमारी जिंदगी को बिल्कुल इस तरह से चलाया जैसे वो गाड़ी सिर्फ गुरुजी चला रहे थे, उस समय भी और आज भी। उस समय जब गुरुजी ने आज्ञा दी उसके लिए बायोप्सी कराने की, जिस दिन वहां पे एक गंगाराम हॉस्पिटल की एक डॉक्टर गुरुजी की सेवा कर रही थी, उनकी बैक मसाज कर रही थी। तो हमें पता था कि वो डॉक्टर किसी दूसरी फील्ड की है, उस उनकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, बट गुरुजी के तरीके ब्लेस करने के, हर संगत को ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है, बिल्कुल नया अलग तरीका। सो ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि वो डॉक्टर तो किसी और फील्ड की है, बट उसको बुला के गुरुजी कहते ऐना ना कल टेस्ट है, तू जाके देख ले। सो जी गुरुजी उन्होंने बोला, और नेक्स्ट डे जब मैं एडमिट हुई वहां पे, वो डॉक्टर वहां आई आईसीयू में, और उनके जरिए कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी ये गुरुजी ही जानते। और जब रिपोर्ट मिली तो वो नेगेटिव थी। सो ये गुरुजी की ही कृपा है। और जब हम गुरुजी को शुक्राना करने के लिए, उनका माथा टेकने के लिए गए नेक्स्ट डे, तो गुरुजी ऐसे स्माइल करके जैसे कहते ना, एक एग्री कर देते थे कि हाँ हूं तू ऐस कम वास्ते आई। सो बहुत बहुत तरीके से गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स करी। एक दिन हम लोग भोपाल से पहुंचे, क्योंकि हम लोग पहली फुर्सत में ढूंढते थे कोई तरीका कि कोई हमें काम पड़ जाए और हम आ जाएं दिल्ली। तो हर 15 दिन के बाद बस एक एक लटक होती थी कि बस भागो अब दिल्ली। और दिल्ली में बहुत ज्यादा संगत होने लग गई थी, तो गुरुजी आदेश दे रहे थे सबको, मैसेज दे रहे थे कि हफ्ते में कौन से दिन आना है या कौन से दिन नहीं आना। तो शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि अगर हम 4 दिन रहते थे तो 4 दिन गुरुजी के दर्शन करने मिल जाते थे, ज्यादा रहते थे तो ज्यादा दिन मिल जाते थे। जबकि बाकी संगत को, जो दिल्ली की संगत थी, को एक ही दिन अलाउड था, और पंजाब की संगत को तो अलाउ ही नहीं करते थे गुरुजी, अनलेस कोई बड़ा फंक्शन होता था। सो आए गुरुजी के पास, बैठे, लंगर प्रसाद किया, शब्द कीर्तन सुनने के बाद, और जैसे ही आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी कहते हैं मेरी भाभी को कि आज तेरी ननान किथे जा रही है। बिकॉज हम जब बाहर से आते थे, पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, तो जिस एरिया में भी या इन लॉज के घर या मदर के घर या ब्रदर के घर कहीं भी रहते थे, तो उस दिन गुरुजी ने आज्ञा दी कि अपनी ननान को अपने घर ले जा। उन्होंने बोला जी गुरुजी, आज एनु दिखाइए कि इथे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, मैं करना इथे सब कुछ। और गुरुजी की आज्ञा मिली, रात के 2:30-3 बजे थे शायद, और हम लोग घर पहुंचे भैया के। और जैसे ही घर पहुंचे, विद इन 15-20 मिनट्स उन्होंने अपने बेडरूम का डोर खोला हमारे लिए, जबकि नॉर्मली गेस्ट रूम में ही हम लोग रहे हैं उनके घर जब भी गए। तो अपने बेडरूम में उन्होंने सोने बोला, वो रीजंस मुझे कुछ पता नहीं है, बट हम जाके जैसे ही सोए, वहां पर 10 मिनट में जैसे गुरुजी से आज्ञा लेके आए थे,
वैसे ही गुरुजी आके मेरे मस्तक पे खड़े हो गए और उतने छोटे जितने आपके गले में पेंडेंट है छोटे साइज के, वो मस्तक पे आके खड़े हो गए और उन्होंने मेरे शरीर पे दो एक्शन किए। जैसे फ्लिक ऑफ ए सेकंड होता है ना, एक पलक झपकते हैं, दो बार ऐसा झपका और उन्होंने दो एक्शन किए उतने में ही, और वो पूरे बड़े साइज में आके सामने खड़े हो गए। और उसके बाद मेरे को गुरुजी नहीं दिखे और उनके जाने के बाद मेरे एब्डोमेन में इतनी सीवियर जलन, जैसे कोई घाव के ऊपर स्पिरिट डाल देता है। उस जलन की वजह से ही मैं उठी और देखा कि आसपास तो कुछ हुआ नहीं है, मैं तो बेड पे लेटी हूँ। और रात की जो बात गुरुजी ने बोली थी वो याद आ गई, और जो हम मंदिर में सत्संग सुनते थे वो भी याद आ गया कि ये तो मेरे साथ कुछ हुआ है, गुरुजी ने मेरी ब्लेसिंग्स करी। मेरा बहुत मन चाहा, बहुत छोटे बच्चे की तरह जैसे उछलता है मन, ऐसे शुरू हो गया कि अब मेरे को जल्दी से जल्दी मौका मिले और मैं अपना सत्संग बाहर सुनाऊं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। क्योंकि गुरुजी ने बोल के ही भेजा था, अगर मेरे को आज्ञा नहीं थी, सबने मना कर दिया कि जब तक गुरुजी को शुक्राना करने नहीं जा रहे तब तक भी सत्संग नहीं करना। हम पहुंचे रात को गुरुजी के पास और अभी हमने माथा भी टेका नहीं था, दूर से ही गुरुजी कहते हैं आओ फिर। एक कपल बैठे थे, ओल्ड कपल, आओ फिर आ जाओ, दसो इन्हों रात ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ होया। अब वो गुरुजी ने अपने चरणों पे बिठा लिया और उनसे सत्संग करने बोल रहे हैं। और वो कपल को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो ऐसा अंदर से फीलिंग थी, जैसे मैं सच्ची फीलिंग्स बता रही हूँ, उस टाइम पे ऐसी थी कि मेरे साथ इतनी पर्सनल कोई चीज हुई है कि जैसे मैं कैसे उनको बताऊं। और गुरुजी के सामने तो जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े लेक्चरर और बड़े बड़े वो पॉलिटिशियंस का भी दम निकलता था, तो हम तो क्या चीज थे। तो बिल्कुल मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुरुजी की तरफ देखूं, उनके मुख की तरफ देखूं और वो संगत को देखूं जिनको हम जानते थे, तो मैं कैसे उनको बताऊं। आज तो हम बड़े खुले होके अपने सत्संग बताते हैं, मगर गुरुजी के सामने बैठ के एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने 2 बार गुरुजी ने आज्ञा दी फिर से कि हाँ जी दसो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राती की होया, और मेरे मुंह से फिर भी एक शब्द ना निकले। और फिर तीसरी बार फिर बोला गुरुजी ने। जब उन्होंने बोला, उनको लगा कि ये तो बच्चा गया काम से, ये तो नहीं बोल पाएगी, तो गुरुजी ने मेरा सत्संग अपने मुख से गोल्डन वर्ड्स में 3 सेंटेंसेस में पूरा किया, जैसे रात को हुआ था वही सेम चीज गुरुजी ने रिपीट करी। तो संगत जी, जब राजाओं का राजा, देवों का देव कहते हैं ना, ये जो गुरुजी कहते थे मैं लाइट से आया हूं, ऐसा रब जो हमारी ये छोटी छोटी जरूरतें या छोटी छोटी मुश्किलें इतने प्यार से हमारे को सुलझाते हैं। कहते हैं ना, गुरुजी का कोई स्वरूप देख लें, उसमें से कितने स्वरूप में गुरुजी ने हाथ जोड़ के संगत को वेलकम किया है। हाथ जोड़ के हम कहां से कहां हैं, कहां पहुंचे हुए हैं, यही सोच के अंदर से मन में ऐसा आता है कि मैं तो क्या कर डालूं ऐसा जो मेरा रब खुश हो जाए। कैसे तक, कहां तक क्या चीज कर डालूं कि उनको खुश कर सकूं या उनके लिए कुछ कर सकूं। अगर हमारी औकात ऐसी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर सके, बस गुरुजी ने इतना सिंपल तरीका हमारे को सत्संग करने का बताया है कि सिर्फ जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको शब्द बाय शब्द, एक एक वर्ड उसका, एक एक फीलिंग उसकी एक्सप्लेन करो, बताओ। उससे आपका भी कल्याण है और जो सुनेगा उसका भी संपूर्ण कल्याण है।